ನಮಸ್ಕಾರ ರೀಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಜಗತ್ತೇ ನೋಡುವಂಥ ಕುಂಭಮೇಳ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಹಿತ ಆದವು, ಅವಾಂತರಗಳು ಸಹಿತ ಆದವು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಜನ ಪಟ್ಟರು. ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ 30-40 ಜನನೂ ಸತ್ತು ಹೋದರು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಆದರೆ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಡಕ ಜವಾರಿ ಕಾಕ ಸುದ್ದಿ ಒಂದು ತಂದಾನ, ನೋಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕ್ರಿ ದರ್ಶನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ VIP ಬೇಕು? ಯಾವುದೇ ದರ್ಶನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾವನೇ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಅವನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರ ದರ್ಶನ. ಹಿಂಬಾಗಿಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ, ಮುಂಬಾಗಿಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ, VVIP ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವಾಂತರ ಆತ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹಗರಣಗಳು ಸಹಿತ ನಡೆದು ಅದನ್ನು ವಿಫಲವಾಯಿತು ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ. ಆ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಾಂತರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬಾಕಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಾಕಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ವರದಿ, ನೈಜ ವರದಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಳ. ತೋರಿಸಲ್ರಿ. ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ, ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಿರಿ. 810 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚೆ, 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಚಮಚೆ 810 ರೂಪಾಯಿ ಚಮಚೆ. ಕುಂಭಮೇಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟ ಹಣವನ್ನು ತಿಂದು ತೇಗಿದರು. ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಮೋದಿಯವರಂಥ ಹಿರಿಯ VIPಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಗೋಧಿ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ರೀ. ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರೂ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಅವ್ರದ್ದೇ ವೈಭವೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಾಳ ಅದೇ ಪ್ರಜ್ಞಾ. ಆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಏನು ಮಾತಾಡಿದಾಳ? ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಯ ನೈಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅವಾಂತರ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೈತೇನ್ರಿ? ಇದು ಭಾಳ ಕುತೂಹಲ ಸುದ್ದಿ. ಎಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಐತ್ರಿ? ಬರೇ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಸ್ಜಿದ್. ಆ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದಂಥ 25,000 ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ, ಹೊದಿಕೆ, ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅನ್ನ, ಆಹಾರ, ನೀರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಇವರೆಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನರು? ಇವರಿಗೆ ಜಾತೀಯತೆ ಐತ್ರಿ? ಇದನ್ನು ಗೋಧಿ ಮೀಡಿಯಾ ತೋರಿಸೋದಲ್ರಿ. ಭ್ರಷ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮ ಇವತ್ತು ಮಾರಿಕೊಂಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಡದಾಟ, ಹೊಡೆದಾಟ, ಬೆಂಕಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ಇಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ಇದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾರ. ಆದರೆ ಇಂಥ ನೈಜ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ತೋರಿಸಿದಾಳ. ನೈಜ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಾಕತ್ತನ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಹಿಂದಿದಾಗ ಐತ್ರಿ, ಆದರೂ ನೋಡ್ರಿ ನೈಜ ಚಿತ್ರ ಐತಿ. ಕಡಕ ಜವಾರಿ ಕಾಕ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ಯಾನ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ಭಾನಗಡ ನಡೆದಾವ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರದೊಂದಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಳ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕಡಕ ಜವಾರಿ ಕಾಕನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಬಟನ್ ಹೊಡಿತೀರಿ. ನಂಬರ್ 1 ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ, ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡಕ ಜವಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. महाकुंभ में बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी योगी सरकार ने। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जिसमें इनके झूठे दावे हैं, ये झूठ बोलते थे, इन्होंने इतनी झूठी बातें कही जो ये सब कुछ अखबार में लिखा है। कहते थे ऐसी व्यवस्था कर दी कि कोई नहीं कर सकता। अखबार में लिखा क्या है पढ़कर देखिए। लिखा है महाकुंभ की सुरक्षा अभेद्य, वाह जी वाह, मक्खन लगाया जा रहा है, चरण वंदना चल रही है। बगल में देखिए लाशों का अंबार। ये सुरक्षा दी आपने, ये थी आपकी अभेद्य सुरक्षा। आप कहते थे 3-3 हजार CCTVs लगा दिए, 2700 से ज्यादा हर तरफ CCTV लगी है, पल पल पर हमारी नजर बनी हुई है। कंट्रोल रूम में क्या देखा आपने? भगदड़ हो रही थी उस रात, क्या सो रहे थे? रजाई ओढ़कर सो रहे थे क्या? ये व्यवस्था की है। एंटी ड्रोन्स लगा दिए, कहा था, कहां गए एंटी ड्रोन्स? क्या देख रहे थे एंटी ड्रोन्स? AI टूल्स आपने स्थापित करवाए थे, कहां गए वो AI टूल्स जो पल पल पर नजर रखे थे? चप्पे चप्पर पर आपकी पुलिस की नजर थी, कहां गई वो नजर? और ऊपर से आपके DIG वैभव कृष्ण ये कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं थी। वैभव कृष्ण, आपको जानकारी नहीं थी? अरे सुनो, तुम्हारी महिला सिपाही ये कह रही है कि स्थिति बेकाबू है, हालत खराब है, भीड़ बढ़ती जा रही है, फोर्स भेजो। सुनो, पहचान रहे हो इसको या इसको भी भूल गए हो? सुनो इसको, ये तुम्हारी महिला सिपाही क्या बोल रही है, सुनो। सर, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है। तानिया ने अपनी पोस्ट लगाई है, बट उनको भी अब मतलब कि भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मैम,
सपोर्ट से, हम लोग के सपोर्ट से सब बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकते, आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, पोस्ट भेजिए सर, कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर पोस्ट भेजिए। सुना, कैसे बोल सकते हो कि जानकारी नहीं थी? अरे शर्म नहीं आई है बोलते हुए? आपको पता ही नहीं है कि आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में क्या हो रहा है, और बड़ी बड़ी बातें ऐसी कि चप्पे चप्पे पर आपकी नजर बनी हुई है। ये महिला सिपाही क्या बोल रही है? अरे अगर नहीं संभाल पा रहे हो तो उतार दो वर्दी और उतार कर किसी सरिया मिल में काम कर लो भैया। सुन रहे वैभव कृष्णा? ये किया है। और बड़ी बड़ी बातें महिला सिपाही किससे कह रही है कि सर हालत बेकाबू है, हालत बहुत खराब है। आपको जानकारी नहीं थी? कैसे बोल सकते हो कि जानकारी नहीं थी? जिस वक्त स्थिति बेकाबू हो रही थी, तुम्हारी ये महिला सिपाही तुम्हें बता रही थी कि स्थिति ठीक नहीं है, और पल्ला झाड़ लिया ये बोल करके कि हमें तो जानकारी नहीं थी। और अगर जानकारी नहीं थी तो शर्म आनी चाहिए, उतार दीजिए वर्दी, जाइए कुछ और काम कर लीजिए। नहीं संभाल पा रहा आपसे, मूंछों पर ताव दे करके अभेद्य सुरक्षा बताते थे कि बड़ी अभेद्य सुरक्षा दी है महाकुंभ में। देखिए इस तस्वीर में कौन कौन बैठा है, देखिए गौर से देखिए कौन कौन तस्वीर में है। डीजीपी साहब है, मुख्यमंत्री जी हैं। सिर्फ झूठ, कोरा झूठ। जब ये दुर्घटना घट गई तब सब पल्ला झाड़ कर निकल लिए कि नहीं जी, पहले तो झूठ बोलते रहे आपकी अफवाह है, अफवाह है, सब झूठ बोला जा रहा है। सबसे आपने झूठ बोल दिया, यहां तक कि आपने महामंडलेश्वरों तक से झूठ बोल दिया, सन्यासियों से झूठ बोल दिया, शंकराचार्य से झूठ बोल दिया, और उनको स्नान कराने ले गए। अब तो वो भी कह रहे हैं आपसे संभल नहीं पा रहा, छोड़ दीजिए। ये दिया है आपने। 25 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की। इस 25 करोड़ को आधा करेंगे तो 12 करोड़ होता है। आपका दावा था 10 करोड़ लोग आ रहे हैं महाकुंभ में, आपको पता था कि 10 करोड़ लोग आ रहे हैं। यह व्यवस्था दी आपने। आधा उत्तर प्रदेश की आधी आबादी महाकुंभ में एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हो रही थी, संभाल नहीं पाए। और जब आप संभाल नहीं सकते थे तो आपने किस हिम्मत से, किस जुर्रत से इतने सारे लोगों को आपने आमंत्रित किया और बुलाया, और ऊपर से झूठ बोला कि आपने ऐसी व्यवस्था कर दी है। कहां गई आपकी व्यवस्था? तनिक भी शर्म नहीं आई? 18 घंटे के बाद आकर के आपने ये बोला कि इतने लोगों की मौत हो गई, 30 का आंकड़ा है, 30 लोगों की मौत हो गई, और उस पर भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, उसको भी लोग झूठ मान रहे हैं। कितनी रिपोर्ट बताऊं, कितनी बातें कहूं? भास्कर रिपोर्ट करता है कि 1500 लोग लापता हैं। कहां गए वो लोग? उनके परिजन उनको ढूंढ रहे हैं। उनको यह तक नहीं पता उनकी पत्नी, उनका पति, उनका बाप, उनका बेटा, उनकी बीवी, उनकी मां जिंदा भी है या नहीं। 30 लोगों का आंकड़ा दे करके निकल लिया आप पल्ला झाड़कर। झूसी में जो भगदड़ हुई उसकी जानकारी कौन देगा? किसी की जवाबदेही है? शर्म आती है आपको? ये बोलते हुए शर्म नहीं आई कि हमें जानकारी नहीं थी? यारे ये बोलने से पहले हाथ नहीं कांपे, होठ नहीं कांपे वैभव कृष्णा? क्या दिखाना चाह रहे थे? ये व्यवस्था दी है, ये है महाकुंभ। महाकुंभ में पाप किया है आप लोगों ने, झूठ बताकर, सच छुपाकर। ये किसी को उम्मीद नहीं थी। लल्लन टॉप ये रिपोर्ट करता है कि 20 से 25 लोग तो दुकान के आसपास थे, शव दुकान के आसपास पड़े हुए थे। कई रिपोर्टर्स ये दावा कर रहे हैं कि मोर्चुरी में 58 शव थे। खुद सोचो, ये इतना मलबा जो 2-2, 3-3 दिन तक सिर्फ लोगों का सामान, जूता, चप्पल, बैग, साड़ी, कपड़ा उठाने में लगा हुआ था, ये किसका सामान था? 7-7, 8-8 हजार जोड़ी जूता, चप्पल जो भर भर के 2-2 दिन तक ट्रकें ले जा रही थी। इतनी ट्रकें लगाई गई थी सामान ले जाने के लिए। लोगों का मलबा ये जो पड़े हुआ था, उसको मलबा ले जाने के लिए, वो किसका था? मन में सवाल नहीं आया? रात को नींद आई ये सोच करके कि हमने इतना महापाप कर दिया, इतना बड़ा सच निगल लिए? कोई यकीन नहीं कर रहा। प्रयागराज महाकुंभ में आए हुए लोग ये कह रहे हैं कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कहती, ये लोग कह रहे हैं, और लोगों की बात मैं आपको बता रही हूं। अरे बेशर्मी की सारी हदें पार कर रखी है। कहीं से कोई जवाबदेही किसी की है नहीं, सब अपना पल्ला झाड़े बैठे हुए हैं। योगी सरकार बिल्कुल फेल साबित हुई इस महाकुंभ में स्थितियों को कंट्रोल करने में, बिल्कुल फेल साबित हुई। आप अखबारों में,
टीवी चैनलों में अपने महिमा मंडन के लिए कुछ भी लिखवाइए कि मिनटों में स्थितियां सुधार ली आपने, लेकिन सच यह है कि आप फेल साबित हुए, फेल। और आपके अधिकारी, ये डीआईजी वैभव कृष्णा जैसे लोग, ये तो मां फेल है। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि ये झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि इनको जानकारी नहीं थी, जबकि इनकी महिला सिपाही चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि सच क्या है, स्थितियां खराब हैं, फोर्स भेजिए। क्या कर रहे थे आप कंट्रोल रूम में? मक्खियां मार रहे थे। इस बेशर्मी पर लगातार सवाल उठाती रहूंगी। नमस्कार दोस्तों, भारत का गोदी मीडिया फर्जी बाबाओं और खूबसूरत साध्वियों की रिपोर्टिंग से जब खाली हुआ तो बाथरूम पत्रकारिता में व्यस्त हो गया। 24 घंटे न्यूज चैनल आपको कौन सा नेता कैसे नहा रहा है, कौन किसको नहला रहा है, कौन पानी उछाल उछाल कर नहा रहा है, कौन डुबकी मार मार कर नहा रहा है, ये 24 घंटे आपको दिखा रहा है। अमित शाह कैसे गंगा नहाते हैं, ये सवाल अगली साल यूपीएससी परीक्षा में पूछा जा सकता है। शायद इसीलिए आपको ये जानना बेहद जरूरी है। योगी जब कैबिनेट के साथ गंगा नहा रहे थे तो किसके किसके ऊपर पानी डाला, आपका ये जानना भी जरूरी है। गोदी मीडिया आपको भाजपा नेताओं का स्नान दिखा रहा है, लेकिन भाजपा राज में इसी स्नान काल में बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है, उसके बारे में आपको कुछ नहीं बताता। सबसे पहले आप राहुल गांधी से यह जान लीजिए कि बाथरूम पत्रकारिता करता गोदी मीडिया है किसका। ये मीडिया कैमरा लिए घूम रहा है, बजाओ ताली। ये आपका मीडिया थोड़ी है, ये अडानी अंबानी का मीडिया है। आप भूखे मर जाओ, आपके बच्चे भूखे मर जाएं, आत्महत्या कर ले, किसान मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अडानी अंबानी की शादी दिखाएंगे, ये उनके हैं, उनकी नौकरी करते हैं। 24 घंटा हिंदुस्तान के किसान की बात नहीं करेंगे, मजदूर की बात नहीं करेंगे, बेरोजगार युवाओं की बात नहीं करेंगे, अडानी अंबानी की शादी की बात करेंगे, अफगानिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, मगर हिंदुस्तान की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात ये नहीं करेंगे। और आपके हर एक के घर में घुसे हुए है, सब बेरोजगार है हिंदुस्तान में, और कोई रास्ता नहीं। भैया टीवी देखो 24 घंटा, तो देखना ही पड़ेगा, जो ये कहेंगे देखना ही पड़ेगा। डराने में लगे हिंदुस्तान को कि देखो देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, देखो देखो उधर क्या हो रहा है। अरे हमें यह भी बता दो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के महू में जय भीम जय संविधान जय बापू रैली कर रहे थे। जहां पर राहुल गांधी रैली कर रहे थे, इसी डबल इंजन वाले भाजपा शासित राज्य के सिंगरौली में भाजपा सरकार ने 5 करोड़ का बर्तन घोटाला कर डाला। भाजपा राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए खरीदे गए बर्तनों की कीमत अगर आप सुन लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ 3 करोड़ 70 लाख में 46,500 चम्मच खरीदे गए, यानी कि एक चम्मच की जो कीमत है वो 810 रुपए पड़ा। खाना परोसने वाली 6,200 करछी 83 लाख की खरीदी गई, यानी कि एक करछी की कीमत 1,348 रुपए पड़ी। पानी के 3100 जग करीब 38 लाख रुपए में खरीदे गए, यानी कि एक जग की कीमत 1,247 रुपए पड़ी। 46,500 खाना खाने वाली थालियां खरीदी गई, तो एक थाली की कीमत 810 रुपए पड़ी। मध्य प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। मोदी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये खान पान मोदी की नाक के नीचे कैसे चल रहा है भैया? 810 रुपए का चम्मच खरीदा जा रहा है। ये लोग केजरीवाल के महल की बात करते हैं और खुद की सरकार में 810 रुपए का चम्मच खरीद रहे हैं। आंगनबाड़ी में सोने के चमचों से खाना खिलाया जा रहा है क्या भैया? 1500 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए हुई खरीद में कुल मिलाकर 4 करोड़ 98 लाख रुपए की खरीदी में भ्रष्टाचार की बात सामने आई है दोस्तों। अब महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने मामले की जांच कराने की बात कह दी है। गोदी मीडिया अपनी बाथरूम पत्रकारिता में यह आपको नहीं दिखाएगा, आपको नेता को नहाते हुए दिखाएगा। आप नेता को नहाते हुए देखिए, एक गांजा फूकने वाला नशेड़ी IITN बाबा, उसका आशीर्वाद गोदी मीडिया आपको दिला रहा है। एक वो रील बनाने वाली लड़की नकली जटाएं लगाकर साध्वी बनकर गोदी मीडिया के साथ मिलकर आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। गोदी मीडिया उसको 24 घंटे दिखाएगा, लेकिन आपके पैसों को कैसे लूटा जा रहा है, कैसे आपकी नाक के नीचे डाका डाला जा रहा है,
वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये जो गोदी मीडिया है ना, इसके मालिक सब सरकार की गोद में बैठे हैं। आप नेताओं के नहाने पर ध्यान दीजिए और उनको नहाते हुए देखकर धन्य हो जाइए। अभी भी वक्त है, गोदी मीडिया की बाथरूम पत्रकारिता से बचिए।